Almost done with your degree? Worried about the common myths regarding the need of excess money, a perfect CGPA, and publications for admissions abroad? Close your eyes, sit back, take a deep breath, and ask yourself this also famous question once more. What do we do now? Well, most of you will be waiting for the rock to appear out of nowhere with his tight jaw and that glint in his eyes, saying, now we rebuild. But unfortunately, this isn't a movie, and Lahore is nowhere close to San Andreas. So I'll cut the chase and give you a head start right here, right now. In starting, I would like you all to know the rules of this webinar. Every gathering has some rules, and so does this one. Rule number one, you aren't allowed to turn on your mics throughout the webinar. Your queries would be entertained at the end of the session if you have questions and you want to unmute yourself. But adding to that, after every 5 to 6 slides are presented, you guys will be given a chance to answer your queries. The presenter will answer your queries. The speaker will answer your queries after every 5 to 6 slides. I hope I have made myself clear. And for that purpose too, you aren't allowed to unmute yourself. Just post your questions in the chat box. Either I or the speaker will read and respond to your questions. I think we are clear now. Like, it is easy, no complicated things. You aren't allowed to unmute yourself. Just post your questions in the chat box. You are allowed to mute yourself at the end of the session, but only once we allow you. Okay. So let's head towards the presentation and the proceeding. Distinguished guests, honorable speakers, and dear audience, we are extending a special welcome to our esteemed guest, Mr. Waleed Ahmed. A warm welcome to you all to this prestigious addressing webinar themed on Post-Engineering Dilemma, arranged exclusively by IIT on campus UT Lahore in collaboration with the EE Department of UT Lahore. Waleed Ahmed is a senior at the Department of Electrical Engineering, University of Engineering and Technology, Lahore. He received fully funded admission offers from the top-notch institutes of USA, including the University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Michigan, uh, University of Michigan Ann Arbor, and Rice University, followed by University of California, Santa Barbara, and yet again New York University. He will be enrolling in the University of Illinois at Urbana-Champaign in fall 2020 for his PhD or MS. This prestigious institute is currently ranked third for electrical engineering and computer science worldwide. Yes, but don't be impressed just yet. There's more to it. All the alumni of his group at UIUC got placed as industrial researchers at valuable brands like Google, Amazon, Microsoft, etc. And others are professors in top US universities like Georgia Tech and University of Maryland. Since childhood, we all are a big fan of stories. They bring facts to life, make abstract concrete. So let us walk through the mind of the speaker today to hear his story and to hear about his journey. Handing over the mic to Mr. Waleed Ahmed.
ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू कैन हियर मी वेल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आपने अगर अगर यूएस की यूनिवर्सिटीज में आपने करना है अप्लाई अप्लाई एमएस और पीएचडी के लिए, तो क्या हिसाब किताब है। तो उसके लिए क्योंकि यहाँ पे यूटी से बाहर के भी बहुत से लोग हैं, और क्योंकि बहुत से लोग वो भी हैं जो कंप्यूटर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है वो लोग। तो एक से सेकंड प्लीज। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि सीएस यहाँ पे डबल ई से नहीं है, तो उनके लिए बस ये है कि क्योंकि जो आपका अप्लाई करने का प्रोसेस है वो सेम ही है हर केस के लिए, तो वो तो सेम ही होगा। लेकिन क्योंकि मैं खुद डबल ई और सीसीएस का ही हूँ, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उसको अपनी फील्ड के लिहाज से भी जो है वो उसमें भी वैसे ही एप्लीकेबल होगा। सो स्टार्टिंग के लिए जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं बड़ी बेसिक सी चीज से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करूंगा। सो वो ये है कि जब आप अपनी बीएससी को जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। या तो आप जाएं एमएस के लिए, या फिर आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। तो बहुत से लोगों को इसका आइडिया नहीं होता, वो सोचते हैं कि शायद पहले हम लोग सिर्फ एमएस में ही जाएंगे, और जब हमारा एमएस कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही जो है वो हम लोग पीएचडी में पीएचडी के लिए जो है वो हम लोग बाहर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपका मेन गोल पीएचडी है, तो आप अपनी बीएससी के बाद डायरेक्टली पीएचडी में भी जा सकते हैं। और उस केस में होता ये है कि क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एमएस की जो डिग्री है वो नहीं होती, तो पहले आप अपने स्टार्टिंग के जो डेट से 2 साल होते हैं उनमें उसमें उसमें आप लोग अपनी एमएस की जो डिग्री है वही लेंगे, और उसके बाद जो है जो आपके अगले 2-3 साल होंगे उसमें जो है वो आपकी पीएचडी होगी। तो यूजुअली जो ट्रेंड है और जो कल्चर है वो यही है कि आप ऐसे नहीं करते कि आपने अगर पीएचडी करनी है तो पहले आप जो है वो सिर्फ एमएस के लिए जाएं, और फिर आप दोबारा से जो है वो अप्लाई करके पीएचडी में जाएं। यूजुअली आप बीएससी के बाद डायरेक्टली ही पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, ये ज्यादा कॉमन है। तो अब जो है वो हमने देखना ये है कि हमें जो है वो हमें पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर एमएस के लिए। तो उसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं, तो वो हम देखते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है फंडिंग का। सो बेसिकली अगर आप एमएस या पीएचडी के लिए जो है वो खुद से फीस दे रहे हैं, या उसके लिए आप अगर खुद से पे कर रहे हैं, तो वो स्टूपिड समझा जाता है सारी दुनिया में। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो जितने भी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, लोग हैं, वो यही बोलते हैं कि आप अगर अपनी एमएस या पीएचडी के लिए पे करें तो वो बहुत स्टूपिड चीज है। उसकी रीजन ये है कि एमएस या पीएचडी के लिए आपके पास सोर्सेज अवेलेबल होते हैं फंडिंग के। अब जो फंडिंग है वो डिफरेंट सोर्सेज में जो है वो अवेलेबल हो सकती है। उसमें 3 है। एक तो है कि या तो आप हो सकते हैं टीए या फिर आरए, या फिर आपको कोई फेलोशिप मिल सकती है। जो आपकी टीएशिप होती है वो आपको मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें आपने वीकली जो है वो एक आपके फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जो आपने टीचर की हेल्प में देने होते हैं,
और उसके बदले में जो है जो आपकी फीस होती है वो बिल्कुल माफ हो जाती है, ट्यूशन फी आपकी बिल्कुल जीरो होती है, और उसके अलावा आपको सैलरी भी मिलती है। जो आपकी आरएशिप होती है वो आपको डिपार्टमेंट जो है वो खुद ऑफर नहीं करता, वो जो भी वहाँ की फैकल्टी है वो अपनी पसंद के स्टूडेंट्स को जो है वो जो आरएशिप है वो ऑफर कर सकती है। आरएशिप में भी ऐसे ही होता है कि जो आपकी ट्यूशन फी है वो बिल्कुल माफ हो जाती है, और उसके अलावा आपको सैलरी मिलती है। और फिर आती है फेलोशिप। फेलोशिप जो है वो ना आपका डिपार्टमेंट आपको दे रहा होता है और ना ही जो आपका प्रोफेसर है वो आपको दे रहा होता है। ये कोई सोर्स होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से बाहर का होता है, जैसे कि गूगल या फिर जो फेसबुक वगैरह हैं, इनकी फेलोशिप्स अवेलेबल होती हैं, और इसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ के स्टूडेंट्स इनके लिए करते हैं अप्लाई। तो अगर आपको फेलोशिप मिलती है तो वो उसका जो दारोमदार होता है वो बिल्कुल आपके ऊपर होता है कि आपने किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता, आपने सिर्फ जो है वो अपने हिसाब से रिसर्च करनी होती है। अब जो इशू है वो ये है कि जो मास्टर्स है उसमें फंडिंग अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि जो मास्टर्स है उसके लिए अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट मास्टर्स कर रहा है ना, वो ये वाली जो डिग्री है वो सिर्फ अपने लिए ले रहा है, इसमें उसके अलावा किसी का फायदा नहीं है क्योंकि इसमें वो कोई रिसर्च नहीं करा। तो अगर वो ये डिग्री अपने लिए ही ले रहा है तो इस बात की कोई सेंस नहीं है कि हम उसको फंडिंग दें। तो इसलिए जो है जो आपकी आरएशिप और जो आपकी फेलोशिप है वो तो रिसर्च से रिलेटेड ही है, इसलिए वो जो है जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी कोशिश होती है कि ये जो आरएशिप और फेलोशिप है ये हम दें अपने जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको। तो जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रह जाती हैं सिर्फ टीएशिप्स। और टीएशिप्स का इशू ये है कि एक तो वो होती बहुत थोड़ी हैं, और अगर वो आपको मिल भी जाए तो बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि बोलती हैं कि हम अगर आपको टीएशिप देंगे भी तो उस केस में भी जो आपकी ट्यूशन फी है वो माफ नहीं होगी, और सिर्फ जो है जो आपकी हम सिर्फ आपको सैलरी देंगे, और उसमें से अगर आपने अपनी ट्यूशन फी का कुछ करना तो आप कर लें। बेसिकली जो इसका क्रक्स है वो ये है कि अगर आपने एमएस के लिए करना है अप्लाई तो उसके लिए जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत थोड़ी हैं, दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ, ऐसी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको मास्टर्स के लिए भी फंडिंग देती हैं इन द फॉर्म ऑफ टीएशिप मोस्टली, लेकिन वो बहुत थोड़ी हैं और सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। सो जो एमएस है उसके लिए आप उस वक्त ही अप्लाई करते हैं कि अगर तो आपके पास बहुत पैसा है, या फिर अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है जैसे कि फुल ब्राइट होती है। लेकिन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में भी इशू ये होता है कि आपको वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप वहाँ पे जितने साल लगा के आएंगे आपको उतने ही साल वापस आके भी लगाने होंगे हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। सो वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपके कैरियर के लिए जो है वो अक्सर और बेशतर जो है वो अच्छी नहीं होती। सो फुल ब्राइट सिर्फ वो लोग सिर्फ उनके लिए अच्छी होती है जो कि एमएस के बाद वापस पाकिस्तान ही आना चाहते हैं। और उसमें एक और इशू ये है कि क्योंकि आपको एमएस के बाद वापस आके उतने ही साल यहाँ पे लगाने पड़ते हैं तो आप फौरन जो है वो आपका अगर आगे पीएचडी का देना है तो आप आगे पीएचडी में भी नहीं जा सकते। सो अगर आपने खुद से जाना है तो मास्टर्स के लिए काफ़ी इश्यूज हैं कि यहाँ पे फंडिंग अवेलेबल नहीं होती। सो बेसिकली इसमें एक और चीज़ देखने वाली ये है कि जो आपकी फंडिंग है जो कि आपको टीएशिप या आरएशिप या फिर फेलोशिप के केस में मिलेगी वो स्कॉलरशिप नहीं है, वो आप उनके लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है जिसमें आपकी वो ट्यूशन फी माफ कर रहे हैं। तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं होती, ये आपके काम के बदले ही आपको जो है वो सब कुछ मिल रहा होता है। ओके, अब हम आते हैं अब हमने जो मास्टर्स का केस है वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं पीएचडी केस में।
पीएचडी के केस में हमेशा जो है वो फंडिंग 5 साल के लिए आपको गारंटीड होगी, और पीएचडी के केस में आपको बिल्कुल भी जो है वो ट्यूशन फी की जो है वो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि कहाँ से पे होगी, कौन पे कर रहा होगा वगैरह वगैरह, वो अपने आप पे होती रहती है। और उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन के आपकी जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, वो कौन सी स्टेट में है अमेरिका में, तो उसके हिसाब से आपको मंथली जो है वो सैलरी वो लोग देंगे। और फॉर एग्जांपल अगर जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो कैलिफोर्निया में है, जो कि काफी उनकी जो मतलब कि वो स्टेट है वो काफी एक्सपेंसिव है, तो वहां पे जो आपकी सैलरी है वो 4,000 या उससे भी ज्यादा यूएस डॉलर हो सकती है। और यही अगर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी किसी ऐसी स्टेट में है जो कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो आपकी जो सैलरी है वो 2,000 से 3,000 के बीच में हो सकती है। सो ये जो सैलरी है ये आपके लिए जो है वो बहुत इनफ होती है, और इसमें आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इस केस में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि आप सॉर्ट ऑफ एक जॉब कर रहे हैं, और आपको इसके बदले में 5 साल के बाद जो है वो आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, और आपको साथ साथ सैलरी तो मिल ही रही है, तो आपको फाइनेंशियल वरीज बिल्कुल भी नहीं होती। तो पीएचडी का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं पीएचडी के केस में और एमएससी के केस में। तो ये हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पीएचडी के बाद आप सिर्फ एकेडमिया में ही एकेडमिया में ही जो है वो आपके चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिले, जबकि ऐसे नहीं होता। अगर आपने पीएचडी की है तो आप उसके बाद भी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। इस केस में जो है मैं आपको मतलब कि जहाँ पे मेरा ही हुआ है, जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ है, वहाँ पे जो मेरा रिसर्च ग्रुप है, मैं अगर उसकी बात करता हूँ तो मैं आपको उसका भी दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर आप ये देखें तो ये मेरा रिसर्च ग्रुप है, और यहाँ पे जो है ये हमारे एलुमनाई हैं जो कि पीएचडी के बाद गए हैं एकेडमिया में। मतलब कि जो ये है इनकी जो पीएचडी है वो 2019 में हुई है, और अभी ये जॉर्जिया टेक में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ऐसे ही जो ये हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और अब अगर हम लोग देखें कि आप इसके बाद एकेडमिया के बजाय इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं, जैसे कि ये हैं ये पीएचडी के बाद अपनी डायरेक्टली जो है वो फेसबुक में एज अ रिसर्च इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। इस तरह ही ये हैं ये गूगल में जॉब कर रहे हैं, ये भी गूगल में जॉब कर रहे हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आपने एकेडमिया में जाना है या फिर आपने जो है वो इंडस्ट्री में जाना है। सो कमिंग बैक टू आवर टॉक, इसके बाद जो है वो मेन चीज आती है कि आपकी जो ग्रूमिंग है वो किसमें ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जो पीएचडी है वो एक बड़ा लंबा आपका प्रोसेस होता है, और वो आपको बहुत सी चीजों से गुजारता है। तो वो आपको जो है इस चीज के लिए इनेबल करता है कि आप हर काम जो है उसको बगैर किसी और की हेल्प से आप उसको इंडिपेंडेंटली कर पाए। तो एक बड़े लंबे अरसे में आप बहुत सी चीजों से गुजरते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं। जबकि अगर आप एमएस में हैं तो एमएस में आपका गोल होता है कि मैं बस जल्दी से जल्दी जो है वो ग्रेजुएट हो जाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो आपका एमएस का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ जो कोर्सेज है यूजली वही ले रहे होते हैं, तो इसलिए जो एमएस का केस है वो आपका बीएस जो आपने बीएससी की ली है डिग्री, वो उससे काफी सिमिलर होता है। सो एज फार एज ग्रूमिंग इज कंसर्न, आप जो है वो पीएचडी में ज्यादा सीखते हैं। उसके बाद जो आखिरी फैक्टर है वो है कि आपको रिसर्च का शौक है कि नहीं। सो अगर आपको रिसर्च का शौक है तो आप जाएंगे पीएचडी में। अब जहाँ पे भी जो हमारी ऑडियंस है इसमें बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे होंगे कि यार जो
रिसर्च ना उसका तो हमें शौक नहीं है, हालांकि उन्होंने कभी रिसर्च शायद ना ही की हो। सो उनके लिए बस ये है कि आप कभी भी जो है वो अपना रिसर्च में इंटरेस्ट है जो है उसको आप उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक आपने रिसर्च खुद ना की हो। तो अगर आपने बाकी में देखना है कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, तो मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि एटलीस्ट आप कोई ऐसी चीज ढूंढें, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा एरिया जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो और उसमें रिसर्च करने की जो है वो कोशिश जरूर करें। और उसके बाद जो है वो आप अपने आप को जो है वो एवेल्युएट करें कि क्या मुझे रिसर्च पसंद है, और अगर पसंद है तो फिर आपको पीएचडी ही करनी चाहिए, एमएस पे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारा असली एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन आंसर्स की जो है वो ब्रेक ले लेते हैं। तो चैट में किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते। Vineet, we got a question in the chat box. Person was asking, what about MS leading to PhD programs? एक्चुअली इसमें जो बात है वो है कि अगर आपका गोल पीएचडी है और आप चाह रहे हैं कि पहले मैं सिर्फ जो है वो एमएस में अप्लाई करूं और एमएस के बाद मैं फिर उसके बाद जो है वो पीएचडी में कर लूंगा अप्लाई, तो उसका इशू ये है कि अगर आप सिर्फ एमएस में अप्लाई करते हैं तो आपको फंडिंग में बहुत इशू होगा। तो अगर आपको ऑलरेडी पता ही है कि मैंने बाद में पीएचडी करनी है, तो आप स्टार्ट से जो है वो पीएचडी में ही अप्लाई करें और उसके अंदर ही जो है वो आपकी जो एमएस की डिग्री है वो भी इंक्लूड होगी। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि स्टार्ट से ही जो है वो आपका फंडेड होगा, ये फायदा है। तो एक और सवाल आया है कि आपको अगर यूएस में एमएस के लिए स्कॉलरशिप, यूएस में जो है वो एमएस के लिए स्कॉलरशिप नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फुल ब्राइट के थ्रू आप जा सकते हैं। और उसका जो ड्रॉबैक है वो मैंने आपको बताया है कि आपको वापस पाकिस्तान आके उतने ही जो टाइम है वो आपको गुजारना पड़ता है। तो इस मीटिंग में जो है वो हम जो हमारी ये टॉक है इसमें हम लोग सिर्फ ये चीज कवर कर रहे हैं कि हमने अगर खुद से अप्लाई करके जाना हो तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फुल ब्राइट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और कोई सवाल है किसी का? जो भी तक हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड, बाकी हमने अभी देखना है सारा प्रोसेस वगैरह। ओके, सो आई थिंक हमें वापस जाना चाहिए। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो उसका क्या सीन है। तो उसमें ये है कि आपके पास दो एडमिशन की जो है वो विंडोज होती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एक फॉल की एक स्प्रिंग की। लेकिन स्प्रिंग के केस में जो आपकी इंटेक जो उनकी इंटेक होती है, मतलब कि वो कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं और जो फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो काफी कम होती हैं, इसलिए इट इज रिकमेंडेड कि आप फॉल के लिए ही जो है वो करें अप्लाई। और अगर आपने फॉल के लिए अप्लाई करना है तो उसकी जो डेडलाइन होती है वो होती है पिछले साल की दिसंबर 15। मतलब कि अगर आपने फॉल 2021 के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए जो आपकी डेडलाइन है वो आपकी इस साल की 15 दिसंबर है। मतलब कि आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो 5 महीने हैं आज से लेके। उसके बाद जो है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं, जीपीए, जीआरई, टोफल, आईएलटीएस और आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपके लेटर्स। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, जो कि वैसे तो रिक्वायरमेंट्स में नहीं होती लेकिन उसकी ज़रूरत है। तो उससे पहले बहुत से लोगों का सवाल है कि जीपीए का कितना चेक होता है एडमिशन पे, तो हम पहले उसको देख लेते हैं। सो जीपीए जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में फिल्टरिंग पर्पस के लिए यूज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत टॉप की
यूनिवर्सिटी है उसके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो वहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है वो भेजी है, देंगे कि फॉर एग्जांपल 3.8 से जिनका जीपीए कम है उनकी एप्लीकेशंस वो लोग आगे देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो आपका जीपीए है वो सिर्फ फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हर जो यूनिवर्सिटी है उसका जो ये फिल्टरिंग का थ्रेशोल्ड है वो डिफरेंट होगा। अगर आप एक बार फिल्टरिंग स्टेज से आगे आ गए हैं तो फिर आपका जीपीए कितना है वो मैटर नहीं करता, आपका एडमिशन उस बेस पे नहीं होता। मतलब कि अगर 3.5 का थ्रेशोल्ड है और आप उससे आगे आ गए हैं तो फिर आपका 3.9 है या आपका 3.7 है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपका एडमिशन जीपीए की बेस पे नहीं होना। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आपका जीपीए लो है और आप स्टिल टॉप की यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी कॉम्पनसेट करने का तरीका होता है जो कि हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद आते हैं जीआरई और टोफल। तो जो आपका जीआरई है वो भी सिर्फ फिल्टरिंग के लिए ही जो है वो इस्तेमाल होता है, उसका भी इतना आपके एडमिशन पे रोल नहीं है कि आपका जो जीआरई स्कोर है वो अगर बहुत अच्छा है तो आपका जो आपका एडमिशन है वो होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपका जीपीए एग्जैक्ट 4 है तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपकी बाकी की जो चीजें वो अच्छी नहीं है। और अगर आपका जो आपका जीआरई स्कोर है वो अगर आपका पूरा है तो उसमें भी आपका एडमिशन नहीं होगा। जो टोफल है वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो देखें कि आप एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं। उसमें उन्होंने एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है कि आपका स्कोर इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका स्कोर उससे ज्यादा वो पूरी हो जाती है, उसमें आपका स्कोर कितना ज्यादा है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल हम लोग इसको इतना ही देख रहे हैं। अभी जीआरई और टोफल दोनों को हम लोग बाद में डिटेल में भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और उसकी जो तैयारी है वो हमने कैसे करनी है। सो उससे पहले जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस का, जो कि यहाँ पे तो मेंशन नहीं है लेकिन आपके प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और वो सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप भी है, वो है प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करना। ठीक है, उसकी रीजन है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसकी एक फी होती है और वो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, लाइक 1 से 10,000 हो सकती है। तो आप ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते और आप सिर्फ उनमें अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपको श्योर हो कि यहाँ पे मेरा एडमिशन होने का चांस है। तो पहली बात तो ये है कि कभी भी आपने रैंडमली मुंह उठा के किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना कि यार ये वाली जो यूनिवर्सिटी ने ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो इसलिए मैं इसमें कर रहा हूँ अप्लाई, ऐसे आपने नहीं करना। सो अब हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमारा चांस है एडमिट होने का और कौन सी में नहीं है। सो उसके लिए जो है पहले तो जो है वो हम लोग यूनिवर्सिटीज हम लोग एक रैंकिंग की जो रेंज है वो हम लोग सुनाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो जीपीए है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो जीपीए वो मैं आपको दूंगा अभी। इसी साल मेरे 2 दोस्त हैं, वो लम्स के स्टूडेंट हैं और उनका जो जीपीए है वो 3.1 के राउंड है, जो कि हम लोग समझते हैं कि बड़ा थोड़ा सा जीपीए है और इतने जीपीए में हमारा एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उनका 3.1 जीपीए के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और उसकी रैंकिंग आई थिंक है 40th इन द होल वर्ल्ड। ठीक है ना, तो अगर आपका 3.1 के साथ भी 40th रैंक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो रहा है तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि 40th रैंक यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी होती है, वो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जीपीए जो है वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि कौन सी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो पहले तो जो है वो आपने अपने जीपीए के हिसाब से
जो आपकी रैंकिंग्स की रेंज है कि आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपने निकाल लेनी है। लाइक अगर आपका जीपीए 3 के अराउंड है तो आपने 35 से लेके 50 तक दो, मतलब कि इस रैंकिंग की रेंज में जौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, आपका जो टारगेट है वो वाली यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। फिर आपने उन यूनिवर्सिटीज में वो वाली फैकल्टी ढूंढनी है जो कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हो, मतलब कि जो आपका इंटरेस्ट है, जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं, या फिर जो आपका अभी तक रिसर्च का एक्सपीरियंस है, जो सुपरवाइजर्स उस एरिया में काम कर रहे हों, आपने उनको ढूंढना है। और फिर आपने इन यूनिवर्सिटीज की और ये जो प्रोफेसर हैं इनकी आपने लिस्ट बना लेनी है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो मैं भी आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है वो MIT को देखना है, ठीक है, तो आप करेंगे MIT WCF फैकल्टी। सो आप जाएंगे इनकी फैकल्टी में। I don't know what is happening with my internet. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उनकी फैकल्टी है, और यहाँ पे जो है वो उन्होंने जो अपनी लैब्स हैं रिसर्च की वो भी उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ये इनकी बहुत एक फेमस लैब है CSAIL, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो काम होता है उनका। सो आप जो है वो यहाँ से जो है ये जो इनकी फैकल्टी है, आप इनको देख के, और यहाँ पे नीचे जो है ये इनके जो एरियाज हैं जिनमें ये लोग काम करते हैं वो उन्होंने मेंशन यहाँ पे किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एरिया है जिसमें आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप जिन लोगों ने अपने एरिया में CSAIL लिखा हुआ है उनकी जो प्रोफाइल है उस पर आप लोग जाएंगे और वहां से आप सब कुछ जो है वो कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन भाईजान की प्रोफाइल पे जाऊं तो ये जो है ये इनका रिसर्च का मिशन है, ठीक है, और ये उनका कांटेक्ट है, और यहाँ से मैं इनकी जो पब्लिकेशन है वो मैं देख सकता हूँ। सो पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने हर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी फैकल्टी में जाके आपने अपने एरिया के लोग निकालने हैं, और फिर आपने इस तरह की एक शीट तैयार करनी है ऑन एक्सेल। उसमें यूनिवर्सिटी का नाम और वहाँ पे जौन से आपको ऐसे लग रहे हैं प्रोफेसर जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, उनको आपने यहाँ पे उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो उसका नाम है वो जो उसकी जो ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पे लिख ली, और जो उसका रिसर्च इंटरेस्ट है, मतलब कि जिन चीज़ों पे वो इंटरेस्ट वो रिसर्च कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ जो रह गई है वो ये है कि आपने रैंकिंग्स कौन सी जो है वो इस्तेमाल करनी है। सो ओके, सो माय इंटरनेट वाज डिस्कनेक्टेड, सो हम लोग वापस आ गए हैं। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने आपकी जो फील्ड है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। ये CS रैंकिंग्स की एक
वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके जो भी आपका एरिया है उसके मुताबिक आप उसको ऑफ या ऑन करके अपने एरिया के मुताबिक जो रैंकिंग है वो आप देख सकते हैं। आपका एरिया अगर सिर्फ ये है तो आप बाकी एरियाज को ऑफ करके सिर्फ जो एआई का एरिया है उसको ऑन करके आप सिर्फ जो एआई का एरिया है उसको आप ऑन करके ये जो रैंकिंग है इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपका जो एरिया है वो सिस्टम्स है तो आप सिर्फ उसको ऑन करके देख सकते हैं कि रैंकिंग हैं क्या और मुझे कौन सी रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको मुझे टारगेट करना चाहिए। अच्छा, अब ये सीएस रैंकिंग जो है ना, ये अगर तो आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है ना तो ये बहुत अच्छी समझी जाती हैं। उसकी जो रीजन है वो ये है कि ये जो है वो यूनिवर्सिटीज को रैंक करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने जो हर एरिया में जो टॉप 4 से 5 कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे जो वेन्यूज हैं वहां पे उन्होंने कितनी पब्लिकेशंस की हैं। तो अगर आपने देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की रिसर्च क्वालिटी सबसे अच्छी है तो उसके लिए आपको सीएस रैंकिंग ही यूज करनी चाहिए। और इसमें सीएस के अलावा अगर आपका एरिया ये है इसके अंदर है तो आप सिर्फ इसको भी देख सकते हैं। अगर आपका एरिया डेटाबेस है या फिर अगर आपका एरिया रोबोटिक्स में है तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो तो यहाँ पे वो आपको सारी जो ऑप्शन है वो देगा और उसके हिसाब से जो रैंकिंग है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आई थिंक यूएस में, हाँ ओके, सो अच्छा, अब इसमें हम लोग जो है ना वो यूएस रैंकिंग इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उसमें ना बहुत से इश्यूज होते हैं कि वो लोग कि वो आपको अंडर ग्रेड और ग्रेजुएट स्टडीज के लिए जो रैंकिंग है ना वो आपको एक साथ ही बताएंगे। वो आपको डिफरेंट जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बेस पे उनको रैंक नहीं करते। तो इसलिए अगर आपका एरिया सीएस या फिर जो इलेक्ट्रिकल है उससे डिफरेंट है तो आप यहाँ पे आके कोई भी जो अपना एरिया है उसके मुताबिक आप यहाँ पे सर्च कर लें और ये आपको ग्रेजुएट स्टडीज के लिए जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी बेस पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो रैंकिंग है वो बताएगा। अब फिलहाल ये आ रहा है ओवरऑल के लिए कि ओवरऑल सारे जो इंजीनियरिंग के आपके एरिया है उनके लिए। तो यहाँ से आप जो इसकी स्पेशलिटी यहाँ पे आ रही हैं वहां से आप इसको भी चूज कर सकते हैं कि आपने कौन से एरिया के लिए जो है रैंकिंग देखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे जो है वो आ रहा है कि अगर मैंने सिर्फ जो है वो इसके लिए देखनी है एनवायरमेंटल के लिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वो जो है मुझे एनवायरमेंटल की बेस पे रैंकिंग निकाल के दे देगा। सो वहाँ से जो है वो आप अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको देख के और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जीपीए के लिहाज से कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। तो ऐसे आपने निकालनी है यूनिवर्सिटी और फिर उनके उस डिपार्टमेंट की फैकल्टी देख के आपने देखना है कि मैंने कौन सी फैकल्टी को टारगेट करना है और उस तरह जो है वो आपने बना लेनी है ये लिस्ट। ओके, तो उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने लिस्ट जो है वो बना ली। अब आपने जिन प्रोफेसर्स की आपने लिस्ट बना ली है अब आपने भेजनी है उनको ईमेल। अब ईमेल में आपने उनको बताना ये है कि मैंने अभी तक ये काम किया हुआ है और ये वो काम है जो कि मैं इस एरिया में करना चाहता हूँ और मैंने आपका जो काम है उसको मैंने रीड किया है और मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरा काम है और आपका काम है वो बहुत सिमिलर है। तो इसलिए आई थिंक कि मैं आपके रिसर्च ग्रुप में आके अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब इसके लिए जो है वो आपको हर जो प्रोफेसर है जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसका जो काम है वो आपको थोड़ा बहुत देखना होगा
उसको ईमेल भेजने से पहले, क्योंकि फिर ही आप उसको ये चीज बता पाएंगे कि मैंने आपका ये काम देखा है और मेरे ख्याल में मेरा और आपका काम काफी सिमिलर है। सो ये एक काफी टाइम कंज्यूमिंग चीज है और इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, मतलब कि वेस्ट नहीं होगा लेकिन आपका बहुत टाइम इसमें कंज्यूम होगा। लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर कोई प्रोफेसर आपकी ईमेल का जवाब दे देता है तो इसका मतलब है कि आपके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस काफी हाई हैं। लाइक मैंने 6 यूनिवर्सिटीज में किया था अप्लाई और 6 के 6 वही यूनिवर्सिटी थी जहां से मुझे प्रोफेसर के रिप्लाई आए थे और उनमें से फिर मेरा 5 में एडमिशन भी हो गया था। सो अगर आपको प्रोफेसर रिप्लाई करता है तो फिर आपके चांसेस बहुत हाई हैं। तो इसलिए ये ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और यही सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। अब बात आती है कि आपने जब किसी प्रोफेसर को ईमेल भेजनी है तो आपने उसमें लिखना क्या है। तो उसके लिए एक टेम्पलेट है जो कि बड़ी कॉमन है। लेट मी फाइंड वेयर इट इज। तो ये जो है ना, ये हमारी ईमेल की टेम्पलेट है जो कि हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। ये जो ईमेल का टाइटल यहाँ पे मेंशन है ना, ये वो चीज़ है जो आपने अपनी ईमेल की सब्जेक्ट में लिखनी है। सब्जेक्ट में आपने उनको बताना है कि मैं एक कैरियर स्टूडेंट की पोजीशन पे आना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपने वो यहाँ पे लिख देनी है, अगर नहीं है तो आपने इसको निकाल देना है। और फिर यहाँ पे आपने बताना है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक क्या है। और फिर यहाँ पे जो है वो आप अपना CGPA अगर आपका अच्छा है तो वो आप बता देंगे, अगर आपका क्लास रैंक अच्छा है तो वो बता देंगे, और अगर आपका GRE का मैथ का स्कोर अच्छा है तो आप वो भी यहाँ पे बता देंगे। ये सब आपको लिखना है अपने सब्जेक्ट में। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपका जो ये रिसर्च एक्सपीरियंस है ये उस फैकल्टी मेंबर को अगर पसंद आएगा तो फिर वो आपको रिप्लाई, तो फिर वो एटलीस्ट आपकी जो ईमेल है वो खोल लेगा। वरना उनको रोज की इतनी ज्यादा 100,000 ईमेल आती हैं कि वो उनको खोलते भी नहीं है। तो आपने अपने सब्जेक्ट में ही इतनी इंफॉर्मेशन डालनी है कि वो उसको ही देख के आपकी ईमेल खोलने पे मजबूर हो। अब जब उन्होंने ईमेल खोल ली है तो फिर बात आती है कि आपने यहाँ पे लिखना क्या है। सो आप पहले तो उनको अपने बारे में एक शॉर्ट जो है वो इंट्रो देंगे कि मैंने यहाँ से जो है वो अपनी जो BSc है वो की है और मैं यहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ रिसर्च का, और मैं आपकी यूनिवर्सिटी में PhD या फिर इसके लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद आप उनको बताएंगे कि मेरे जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो ये हैं, और फिर अगर तो आपकी कोई पब्लिकेशन है तो वो आप यहाँ पे बता देंगे, अगर नहीं है तो वो आप नहीं बताएंगे। और फिर जो आपकी CV है या आपकी वेबसाइट है वो आप यहाँ बता देंगे। उसके बाद ये है कि ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने करना ये होता है बेसिकली कि आपने उनको बताना है कि मैंने आपका ये जो काम है ये मैंने रीड किया है, जिसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है। इसको आपने बहुत डिटेल में नहीं बताना होता क्योंकि उनको भी मालूम है कि हमने क्या काम किया हुआ। ये आपने सिर्फ इसलिए यहाँ पे मेंशन करना होता है कि उनको ये आइडिया हो जाए कि आपने एटलीस्ट उनका जो काम है उसको रीड किया है और आपने उसको गो थ्रू किया है। क्योंकि उनको रोज की इतनी जो है वो ईमेल आती हैं तो उनको भी मालूम होता है कि एक जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एक ही प्रोफेसर को ईमेल नहीं भेजता, वो बहुतों को भेजता है। तो अगर आप एक जेनेरिक सी ईमेल उनको भेज देंगे तो वो उसका रिप्लाई नहीं आएगा। तो आपने उसमें मेंशन करना है कि उन्होंने क्या काम किया हुआ है ताकि उनको ये चीज समझ आए कि एटलीस्ट आपने थोड़ी सी मेहनत की है और आपने उनका काम देखा है, और आपने एमी ही एक ईमेल जो है वो उठा के बहुतों को नहीं भेजती। उसके बाद आपने जो काम आपने खुद किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे
येलो में किया हुआ है हाईलाइट, उसको आपने मेंशन करना है थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये चीज़ आपको उसको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने इसी से इम्प्रेस होना है। उसके बाद एंड में आप उनको बताएंगे कि मेरा और आपका काम जो है वो काफ़ी सिमिलर है, तो इसलिए आई थिंक कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। और फिर एंड में आपने मेंशन करना है कि जो मेरा कि इस ईमेल का जो मकसद है वो ये है कि मैं अपना जो इंटरेस्ट है वो शो करूँ, और अगर आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँगा। ठीक है। अब क्योंकि वो अच्छा, अब इसमें जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि अच्छा, इसमें जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में जाके जो उनकी फैकल्टी है वो ढूंढ रहे होंगे कि आपने किसको ईमेल भेजनी है, तो वहाँ पे जो आपने टारगेट करना है वो आपने करना है यंग जो वहाँ की फैकल्टी है उसको, क्योंकि जो वहाँ की सीनियर फैकल्टी होती है उसके बाद इतना टाइम नहीं होता, वो पहले बड़े बिजी होते हैं कि वो स्टूडेंट्स की जो ईमेल है वो उनको खोलें। हालांकि जो वहाँ पे यंग फैकल्टी होती है जिनकी अभी अभी खुद की जो है वो जो पीएचडी है वो हुई होती है, तो वो लोग काफी एक्टिवली जो है वो स्टूडेंट्स को ले भी रहे होते हैं, और वो उनके पास इतना टाइम भी होता है कि वो उनकी ईमेल खोल के देख लें, तो उनसे रिप्लाई आने का चांस आपका थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये आपका रूल ऑफ थंब है कि जब आपने फैकल्टी ढूंढनी है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो टारगेट कर रहे हैं जौन सी फैकल्टी को वो यंग हो। सो उसके बाद जब आपने उनको ईमेल भेज दी है तो उसके बाद जिन जिन प्रोफेसर्स का आपको रिप्लाई आया है उसकी बेस पे आपने उन यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करना है कि इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे अप्लाई करने के बाद एडमिशन के चांसेस होंगे। सो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, क्वेश्चन आंसर्स की। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता। Vineet, can you hear me? हाँ, Vineet, the first question is publication necessary to apply for PhD or MS? वो भी हमने आगे उसके बारे में बात करनी है। जो मैंने अभी तक बताया उसके बारे में कोई क्वेश्चन है? Okay, so we got another question. Does it matter कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो पाकिस्तान से और आपकी एप्लीकेशन किससे कोई फर्क पड़ता है? इसमें ये है कि क्योंकि पाकिस्तान से इतने स्टूडेंट्स का बाहर जाने का रिवाज है ही नहीं, तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है वो किया है अप्लाई, ये इतना तो वो सेम ही है उनके लिए। इसमें ये है कि क्योंकि लम्स ने पिछले 4-5 सालों से अपने काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो भेजना स्टार्ट किए हुए हैं, तो उनका एक जो गेटवे है, जो उनका पाथवे है वो उन्होंने अपना बना लिया हुआ है। मतलब कि वहाँ के अब इतने स्टूडेंट बाहर जाना स्टार्ट हो गए हैं कि वहाँ के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मालूम है कि ये वाला जो लम्स है वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उनको वो तो उन्होंने अच्छा हमारे पास काम किया। तो इस बेस के ऊपर अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो इतना आई डोंट थिंक कि मैटर करता है कि आप कौन सी के, अनलेस कि आपकी जो आपका पाथ है वो बनाओ। Vineet, there is another question कि बैचलर्स के अंदर आप रिसर्च एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें? वो भी मैं भी आगे बताऊंगा एक्सपीरियंस में। अभी जो मैंने यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करना और जो मैंने कहा है कि आपने ऐसे ईमेल भेजनी है, उसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। विनीत, एक क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि आपका जो होता है जीआरई और जीपीए टोफल है उसे फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, तो वी रिसीव अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द एग्जैक्ट क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन? यार जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया है वो नहीं होता किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए।
हाँ, वो आपको कोई थ्रेशोल्ड ज़रूर देंगे कि आपने अगर हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिए अगर आपने करना है अप्लाई, तो आपका जो स्कोर है टोफल में वो एटलीस्ट इतना हो वगैरह वगैरह। लेकिन वो भी जो थ्रेशोल्ड है वो उनके जो वो बाद में फिल्टरिंग के लिए थ्रेशोल्ड इस्तेमाल करते हैं वो उससे बहुत लो होता है, वो उनका असली थ्रेशोल्ड नहीं होता। और ये जो फिल्टरिंग की टेक्निक है कुछ थोड़ी सी ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसको इस्तेमाल शायद ना करते, लेकिन मोस्टली वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सो कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो खुला जो है वो इस चीज़ को नहीं आपको बताता कि हम इसको फिल्टरिंग के लिए करते हैं इस्तेमाल या इसका क्या हिसाब किताब है। लेकिन ये एक जनरल जो है वो परसेप्शन है, क्योंकि जो इन इंस्टीट्यूट्स की एडमिशन कमेटीज में लोग बैठते हैं और जो लोग एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि हम लोग जीपीए या फिर जो आपके जीआरई के स्कोर हैं उनको हम लोग फिल्टरिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक जो थ्रेशोल्ड है वो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं आपको बताता। देयर अनदर क्वेश्चन कि हमें बीएस के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए या हम पहले कहीं पाकिस्तान से एमएस करके फिर अप्लाई करें तो हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? एक्चुअली अगर आप एमएस के बाद अप्लाई करते हैं तो उसका आपको एडवांटेज ये है कि एमएस में यूजुअली आप थीसिस अपना जो है वो लिखते हैं, तो थीसिस की बेस पे आप अपना रिसर्च पेपर भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप मास्टर्स के बाद अप्लाई करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एटलीस्ट एक पब्लिकेशन होती है और उसकी बेस पे जो है वो आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बीएससी के बाद करेंगे अप्लाई तो आपको कोई नुकसान है, क्योंकि उनको भी मालूम होता है कि अच्छी रिसर्च करने में टाइम लगता है और पेपर जब आपने सबमिट भी किया है तो उसके बाद भी उसको पब्लिश होने में टाइम लगता है। तो वो लोग यूजुअली जो है वो अंडर ग्रेड से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशन होगी। आपने रिसर्च का काम किया हो वो मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर्स को कितनी देर पहले अप्रोच करना चाहिए एडमिशन डेडलाइन से? बेसिकली प्रोफेसर्स को आप अप्रोच इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चले कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, और ये आपको जितना जल्दी मालूम हो जाए उतना ही बेहतर है। सो आपको एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि अगर आपने इस साल अप्लाई करना है, आपके पास 5 महीने हैं, तो आपको आज से ही जो है वो अपनी अच्छी जो है वो ईमेल की जो टेम्पलेट है वो अच्छी सी आप एक तैयार कर लें, उसके ऊपर लगा के टाइम वगैरह, और फिर आप आज से ही जो है जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो आपकी फैकल्टी है उसको ढूंढना स्टार्ट कर दें और आप उनको ईमेल भेजना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत इस काम में बहुत आपका टाइम लगेगा। मतलब कि अगर आप आज भी स्टार्ट करते हैं उसको आप अगर रोज़ टाइम देंगे भी तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। और इसमें यह है कि आपको कि ये एक बार ना फर्स्ट मतलब इस प्रोसेस में ना आपको ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि बहुत थोड़े से ऐसी फैकल्टी होती है जो आपको वाकई में रिप्लाई करती है। और एग्जांपल अगर आपने कोई 40 से 50 को मेल किया तो कोई 5-6 का ही आपको रिप्लाई आएगा। या फिर अगर आप बहुत ही आपकी जो ईमेल है वो बहुत ही अच्छी थी और आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है तो शायद आपको औरों का भी आ जाए। तो ये लेकिन वो जो 5-6 का आपको रिप्लाई आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि वहाँ पे आपका चांस बहुत ज़्यादा होता है एडमिशन होने का। अच्छा वलीद, आपने सीएस रैंकिंग के अलावा एक और वेबसाइट सजेस्ट की थी फॉर द रैंकिंग, तो काफ़ी लोग चैट में दोबारा पूछ रहे हैं कि अदर देन इंजीनियरिंग यूएस न्यूज़ की रैंकिंग है। आप अगर गूगल पे जाएं और आप सर्च करें यूएस न्यूज़ ग्रेजुएट रैंकिंग्स तो आपको मिल जाएगा। ओके, एक हमारे पास और क्वेश्चन था यहाँ पे।
क्वेश्चन ये था कि अगर आपकी रिसर्च अभी आपने मतलब सबमिट करवाया हुआ है किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर या लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ तो कैन वी मेंशन इट इन आवर ईमेल? हाँ हाँ हाँ, बल्कि ये बहुत अच्छी बात होती है। आपका जो पेपर है वो अगर सबमिट भी हुआ हो तो उसको आपने मेंशन जरूर करना है, क्योंकि क्योंकि सबमिशन भी एक बहुत बड़ी चीज समझी जाती है, स्पेशली अगर आप अंडर ग्रेड के बाद डायरेक्टली जो है वो करें अप्लाई। क्योंकि अंडर ग्रेड स्टूडेंट से कोई भी किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि उसका कोई रिसर्च पेपर होगा। तो इवन अगर आपने सबमिट भी किया हुआ है तो वो भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो वो आपको जरूर उसके अंदर बताना चाहिए कि मैंने ये वाला जो पेपर है उसको मैंने सबमिट किया हुआ है, और इवन आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसके साथ जो आपने पेपर सबमिट किया हुआ है उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको साथ लगानी चाहिए। आगे प्रोसीड करें। I guess there are no more relevant questions, so we should proceed. ओके ओके, सो जो बहुत से लोगों के सवाल आए थे कि आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए और आपकी जो पब्लिकेशन है वो होनी चाहिए कि नहीं। तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे नहीं कहता कि आपको रिसर्च एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है और बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपने कभी रिसर्च की ही नहीं है तो फिर कोई बंदा आपको पीएचडी में एडमिशन दे ही क्यों। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस हो। जब कोई भी एडमिशन कमेटी आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू कर रही होती है तो वो ये देखते हैं कि आप में रिसर्च करने की पोटेंशियल है कि नहीं। क्योंकि रिसर्च क्योंकि पीएचडी एक बहुत इजी काम नहीं है, ना ही रिसर्च एक बहुत 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 आसान काम है। ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती, तो इसलिए उनको इस चीज का प्रूफ चाहिए होता है कि आप में रिसर्च की कैपेबिलिटी है। अब ऑब्वियसली अगर आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशन है तो ये तो उनके पास डायरेक्ट जो है वो आप भेज रहे हैं प्रूफ के मेरे अंदर रिसर्च की कैपेबिलिटी है। इवन अगर आपके पास रिसर्च की जो पब्लिकेशन है वो नहीं भी है तो स्टिल अगर आपने रिसर्च का काम किया हुआ है या फिर अगर आपने जो जो आपके एरिया से रेलेवेंट रिसर्च आजकल हो रही है अगर आपने उसको रीड किया हुआ है तो वो भी मतलब कि उनको ये चीज दिखाती है कि एटलीस्ट ये हमारी रिसर्च को अंडरस्टैंड कर रहा है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इसको अंडरस्टैंड कर रहा है और ये इसके ऊपर काम भी कर रहा है। इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको दूंगा कि चौंसी लैब में मैं लम्स में काम कर रहा था। वहां पे मेरे साथ ही एक स्टूडेंट थे जिनकी कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं थी और उनका एमआईटी में एडमिशन हुआ है। उसके अलावा एक और स्टूडेंट थे मेरे साथ ही, उनकी भी रिसर्च पब्लिकेशन नहीं थी और उनको भी जॉर्जिया टेक से भी ऑफर आई थी, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से भी ऑफर आई थी। तो इसका मतलब यही है कि जो आपकी रिसर्च पब्लिकेशन है वो होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस इतना हो या फिर आपने अपने एरिया में इतनी जो रेलिवेंट रिसर्च आजकल हो रही है वो आपने इतनी रीड की हो कि आपको मालूम हो कि मेरा अगर पीएचडी में एडमिशन होता है तो मैं आगे जाके क्या काम करना चाह रहा हूँ। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही हवाओं में हो कि यार कि आपको आइडिया ही ना हो कि आपने करना क्या है। तो रिसर्च एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अब बहुत से सवाल आ रहे थे कि अगर आप अंडर ग्रेड में हैं तो आपने रिसर्च एक्सपीरियंस गेन कैसे करना है। अगर तो हम लोग एक आइडियल सिनेरियो की बात करें तो आपको अपने सेकेंड ईयर के एंड पे जो है ना अपनी एप्लीकेशन की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अपने यूनिवर्सिटी में बीएससी में आने के बाद सेकेंड ईयर के एंड पे रिसर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने नहीं की और अब अगर आपका फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है और आपके 3 साल हो गए हैं तो अब एक तो आप हो गए हैं बहुत लेट। लेकिन स्टिल आपके पास 5 महीने हैं। सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है इसकी वो तो ये है कि
जो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अभी तक जो भी काम किया हुआ है आपको उसको अच्छे से रिसर्च ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिस्क्राइब करना आना चाहिए. लाइक आपका जो भी एफआईपी है, अगर उसमें रिसर्च का एक छोटा सा भी उसमें एलिमेंट है तो आपने अपने एफआईपी को ही ऐसे आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि ऐसा लगे कि आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है, मतलब कि अगर आपका जो एफआईपी है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में है, तो आपने उसको ऐसे डिस्क्राइब करना है जब आप किसी भी फैकल्टी मेंबर को ईमेल भेज रहे होंगे कि उनको यही फील आए कि आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं, इवन दो अगर उसमें रिसर्च का एलिमेंट बहुत स्मॉल भी हो. सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि आपके पास फिलहाल कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपने रिसर्च का जो काम है वो आज तक नहीं किया हुआ और आपके पास टाइम अब बहुत हो रहा है, आपके पास 5 महीने और आपने ईमेल भेजना स्टार्ट करनी है. दूसरा काम ये है कि आपने अभी से ही अगर तो आपका सेकेंड ईयर का जो है वो एंड है, फिर भी आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे फैकल्टी मेंबर ढूंढने हैं जो कि एक्टिवली रिसर्च कर रहे हों. ठीक है, और आपने उनके पास जाना है जो कि आपके एरिया के प्रोफेसर हों और आपने उनको बोलना है कि आप उनके साथ रिसर्च करना चाह रहे हैं. ठीक है, ये एक काम हो सकता है. और उसके अलावा एक और काम, अगर तो आपने अभी अपना जो एफआईपी है वो स्टार्ट नहीं किया और आप ढूंढ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो रिसर्च ओरिएंटेड ही हो, तो आप अपने एरिया में जो आजकल रिसर्च हो रही है वहां से जो रिसर्च पेपर है वो उठाएं, उनको रीड करें. जौन सा आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि इस पेपर के अंदर जो रिसर्च हुई है वो मैं एग्जैक्टली रिपीट कर सकता हूँ, वो डूएबल है मेरे लिए, तो आप एटलीस्ट उसी रिसर्च को एज इट इज रिपीट करके जब आप उस लेवल पे पहुंच जाए कि जो रिजल्ट्स उनके उस रिसर्च पेपर में आए हुए हैं वो आपके आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई करके उसको टेंट करके जो है वो आप एटलीस्ट ये अपनी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि मैं इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैंने इस टाइम तक जो इस रिसर्च पेपर में हुआ है मैंने एटलीस्ट उतना जरूर मैंने कर लिया है चीज. ठीक है, और इसमें जिन्होंने इस साल करना है अप्लाई, उनके लिए उनको थोड़ी सी जो है वो फेवर भी वो लोग देंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आजकल जो है वो कोरोना की वजह से इतना एक्टिवली लैब में रिसर्च नहीं हो रही, तो जो लोग आजकल रिसर्च कर भी रहे हैं वो भी रिमोटली ही कर रहे हैं. तो इसलिए आपने एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि जो आपने काम अभी तक किया हुआ है आप उसको एक रिसर्च ओरिएंटेड वे में जो है वो डिस्क्राइब कर पा रहे हैं. ठीक है, सो ये आपका गोल होना चाहिए. पब्लिकेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करना आना चाहिए. उसके बाद आप बेस्ड ऑन योर करंट एक्सपीरियंस आप अपने जो प्रोफेसर हैं जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया है उनको आप ईमेल भेजना स्टार्ट कर दें. अगर आपको डाउट है कि मेरे पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरा इस साल एडमिशन हो, तो आप एटलीस्ट जो है वो उनको ईमेल भेजना स्टार्ट करें. अगर आपको अगले 1 से 1.5 महीने में प्रोफेसर का रिप्लाई आता है तो इसका मतलब है कि आपका चांस है, तो फिर आपको इसी साल अप्लाई करना चाहिए. अगर तो आपको किसी का रिप्लाई नहीं आया और आपको ये भी फील हो रहा है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है या आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आपको एक गैप ईयर लेके उसमें अपनी रिसर्च की जो प्रोफाइल है उसको आपको इम्प्रूव करके और फिर आपको अप्लाई करना चाहिए. लेकिन जो भी है आपने जौन से भी रूट पे जाना है, आपने इस साल अप्लाई करना है या आपने अगले साल अप्लाई करना है, एटलीस्ट आपको प्रोफेसर्स को ईमेल भेजना स्टार्ट कर देनी चाहिए और उससे आपको आइडिया होगा कि आप इस टाइम पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और उसकी बेस पे फिर आप ये फैसला ले सकते हैं कि आपने इस साल अप्लाई करना है या नहीं करना. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे आपकी कि आपने कैसे लिखनी है. स्टेटमेंट
वैसे इससे पहले मेरा ख्याल है कि हमें सवाल जवाब ले लेने चाहिए कुछ, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी सवाल जवाब होंगे स्टूडेंट्स के। सो मैं स्टॉप करता हूँ, और अगर अगर किसी के सवाल हैं तो बता दें। पेस जो पेस है वो भी इसलिए स्लो है क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो पेस भी मैं थोड़ी सी होगी इंक्रीज आके जा वेट करें। If master's isn't completed yet, should we apply for the PhD? अब बेसिकली आप जो है वो अपने फाइनल ईयर में ही करते हैं अप्लाई। अगर तो आपका बीएससी का फाइनल ईयर है तो आप उसमें करेंगे अप्लाई, या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और आपका मास्टर्स का आखिरी साल है तो आप उसमें करते हैं अप्लाई। अगर आपके उसके बाद सवाल है कि आप अपने सेमेस्टर एंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप रिसर्च एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकते हैं कि नहीं। अगर तो उसमें कोई छोटा सा भी रिसर्च एलिमेंट है तो फिर आप उसको बता सकते हैं। अगर तो वो बिल्कुल ही जो है वो कोई इतनी मतलब कि एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है, मतलब कि वो सारे लोग ही बनाते हैं, मतलब कि अगर आपने एक सिर्फ सिंपल सा सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट ही बनाया है तो आई डोंट थिंक उसको आपको करना चाहिए मेंशन, क्योंकि उससे आपकी एप्लीकेशन पे अच्छा तो नहीं इफेक्ट आएगा, बुरा ही आएगा। हाँ जी, आप जीआरई या फिर टोफल के बगैर जो है वो ईमेल सेंड कर सकते हैं फैकल्टी को, उसमें कोई इशू नहीं होता। If we pursue MS from UT Lahore and then apply for PhD, is it possible? हाँ जी, it is possible. देयर इज अ क्वेश्चन कि आपने कहा था कि हमें अपना जो सबमिटेड पेपर है उसकी पीडीएफ साथ अटैच करनी चाहिए, तो समवन इज शोइंग कंसर्न कि व्हाट इफ द यूनिवर्सिटी इन व्हिच यू हैव अप्लाइड यूज्ड योर रिसर्च वर्क and made their own publication and your research paper got rejected. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको सबमिट तो किया ही हुआ ना, तो कोई और तो उसको फिलहाल यूज नहीं कर पाएगा। और अगर तो यूजली ऐसे होता नहीं है कि वो आपका पेपर ही चोरी कर लें, क्योंकि वैसे भी जो है मोस्ट प्रोबेबली जो रिसर्च वो लोग कर रहे होंगे वो उससे काफ़ी हैवी होगी जो आपने की होगी, तो वो लोग वैसे भी उसको कॉपी नहीं करेंगे। और मतलब कैसे नहीं होता यूजली, स्टिल अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी है तो आप उनको ईमेल में ये कह दें कि आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको अपना जो पेपर का ड्राफ्ट है वो भी भेज सकता हूँ, ठीक है। Vineet, there is a question कि some students don't know about research, तो थोड़ा सा elaborate कर देंगे। रिसर्च वर्क अगर आप चाहते हैं कि अपने एफआईपी में आप डालना चाहते हैं तो उसको किस तरह अपने एफआईपी को आपको मोल्ड करना चाहिए? जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि अगर तो आपने अभी अपना जो एफआईपी है उसको डिसाइड नहीं किया, या फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया, तो आप अपने एफआईपी से रिलेटेड आप ऑनलाइन जाएं, आप वहाँ पे उससे रिलेटेड जो रिसर्च पेपर हैं उनको रीड करें। अब कोई भी अगर आप रिसर्च पेपर लेते हैं तो उसमें उन्होंने सारी की सारी जो उसकी मेथडोलॉजी है और हर चीज एक्सपेरिमेंटेशन, हर चीज उन्होंने उसके अंदर क्लियरली मेंशन की होती है। तो आप कोई ऐसा पेपर ढूंढ लें जो आपके हिसाब से डुएबल हो आपके एक साल के अंदर अंदर, और फिर आप इवन अगर आप उस रिसर्च पेपर में भी जो काम हुआ है अगर आप उसको भी एज इट इज रिपीट करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी बात समझी जाती है कि एटलीस्ट इसने इतना अंडरस्टैंड किया है कि ये वो काम कर रहा है। और फिर अगर आपके पास मजीद टाइम है तो आप उसको मजीद जो वो आपने जो काम किया है उसका मजीद
मॉडिफाई करके और आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं उसके अंदर। आई थिंक हमें अब आगे जाना चाहिए, टाइम काफी कम है, तो Yes, we should move forward. अच्छा, उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अगला, वो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये बेसिकली एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ज़रूरी है आपके मिशन के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप वो बातें बताते हैं जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट में नहीं है, यहाँ पे जो मतलब कि वो आपकी स्टोरी है, जो आपकी रिव्यू कर रही है कमेटी, वो उसको उस स्टोरी का वैसे आपकी बाकी चीजों से मालूम नहीं हो सकता। तो ये आपका चांस है अपनी स्टोरी बताने का। अब अगर हम लोग इसको जो आपकी कमेटी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कर रही है, अगर हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, तो जो आपकी एसओपी का पहला पैराग्राफ है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एप्लीकेंट की जो एसओपी है वो पूरी की पूरी रीड करें, क्योंकि ऑन एवरेज हर जो एसओपी है उसकी लेंथ ऑलमोस्ट 2 पेज तो होती ही है। तो जो उसका पहला पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पहला जो भी आपके रिसर्च इंटरेस्ट हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, उनको आपने अपनी एसओपी के बीच में छुपाना नहीं है, कि उनको आपकी एसओपी में ढूंढना पड़ रहा हो कि यार इसकी अचीवमेंट्स हैं कि या फिर इसका जो एक्सपीरियंस है वो है क्या। आपने कोशिश ये करनी है कि आप एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रीफली आप अपनी एसओपी में बता सकें। इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको एक जो एसओपी है उसका जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद उससे आपको बहुत आइडिया हो जाए। सो बेसिकली ये एक एसओपी का ओपनिंग पैराग्राफ है। अब इसमें जो इसमें पहला सेंटेंस है उसमें हमने अपनी जो कमेटी है, मतलब कि जो बंदा रीड कर रहा है, उसको हमने ये चीज एक्सप्लेन की है कि आजकल मेरे एरिया में कौन कौन से टॉपिक्स पे रिसर्च हो रही है। अब उनको ये बात पहले से मालूम है, लेकिन फिर भी आप उनको एक सेंटेंस में ये बात बताएंगे, उनको ये दिखाने के लिए कि आपको मालूम है कि ये रिसर्च हो रही है, और तो आपने उनको एक सेंटेंस में जो अपना रिसर्च का इंटरेस्ट है वो आपने उनको बता दिया। उसके बाद आप उनको बताएंगे कि ये एरिया है और मैं इनके अंदर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद आप उनको एक ही सेंटेंस में आपने इस टाइम तक जो काम किया हुआ है, जो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, वो आपने उनको एक सेंटेंस में बता दिया। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस। अब आपने उनको बताना है कि आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं, वो भी आपकी एक अचीवमेंट है। उसको भी आपने एक सेंटेंस में बता दिया कि मैं अपनी क्लास में टॉप पे रैंक कर रहा हूँ। उसके बाद आपने बता दिया कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और फिर आपने आखिरी सेंटेंस में उनको जो आपका अल्टीमेट गोल है वो आपने उनको बता देना है। अब जो भी बंदा आपकी जो एसओपी है उसको रिव्यू कर रहा होगा, उसको ये पहला पैराग्राफ रीड करके ही जो है वो समझ आ रही है कि 1 आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है, 2 आपका जो रिसर्च है वो क्या है, और 4 आपका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। सो अगर वो इससे इंटरेस्टेड होगा तो फिर वो आगे आपकी जो एसओपी है उसको रीड करेगा, वरना जो है वो इसको इधर ही छोड़ के अगली पे मूव कर देगा। तो इसलिए जो आपकी एसओपी है उसका जो पहला पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपने पहला पैराग्राफ बता दिया है, तो उसके बाद आपने आगे जो भी आपकी स्टोरी है वो आपने बतानी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि आपने बीएससी में आने के बाद क्या क्या किया। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं वो हम लोग देखते हैं क्या, वो हमने नहीं करनी। तो पहले तो आपने अपनी
अपनी जो बचपन की कहानी है ना वो इसमें आपने नहीं बतानी कि मैं जी बचपन में मैं खिलौनों से खेलता था उनको मैं खोलता था तो इसलिए मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है ना, ये बहुत जो है ना वो नॉर्मल स्टोरीज हैं, बहुत कॉमन स्टोरीज हैं और ये उनको मालूम है, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं लिखनी। उसके बाद आपने अपनी बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन होने से पहले क्या किया है, आपने मैट्रिक किया है, आपने एफएससी किया है, ओ लेवल्स किया है, उसमें आपके मार्क्स क्या थे, कितने, क्या आपका ग्रेड था, नो वन केयर्स। ठीक है, तो वो आपने नहीं बताना। आपने बीएससी में एंट्री होने के बाद कैसे जो है वो अपने आप को हैंडल किया आपने वो बताना कि कैसे आपका कौन सी फील्ड में जो है वो रिसर्च का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ। फिर उस इंटरेस्ट डेवलप होने की बेस पे आपने कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपने लिए, उन कोर्सेज में आपने कैसा जो है वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी थी, और फिर उसके बाद आपने उस एरिया में कौन कौन सी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को जो है वो आपने उनका फायदा उठाया। सो आपने स्पेसिफिकली जो अपना फोकस है वो आपने रखना है कि आपके जौन से एरिया में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएससी में आने के बाद से लेके आपने इस टाइम तक उस एरिया में क्या क्या किया है, आप उस एरिया में क्यों इंटरेस्टेड हुए, आपने फिर इंटरेस्टेड होने के बाद क्या किया, कौन से कोर्सेज लिए, क्या आपने उसके अंदर की रिसर्च वगैरह। ठीक है, अब इसमें जो है ना यूजली तो आप अच्छा ठीक है, ये आपने उसके अंदर लिख लिया और फिर आपने अपने एसओपी में मतलब कि जो आपकी एसओपी है वो हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम होगी एक्सेप्ट फॉर वन पैराग्राफ, जिसमें आप बताएंगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में कौन से फैकल्टी मेंबर के साथ काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपने हर अपनी एसओपी में एक सेपरेट पैराग्राफ बनाना है जिसमें आप बताएंगे कि ये वाला फैकल्टी मेंबर है, इसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने इस चीज़ पे काम किया हुआ है। मतलब कि ऑलमोस्ट वही बातें जो आपने उस फैकल्टी मेंबर को अपनी जब आपने उसको सेंड की थी ईमेल, उसमें जो आपने बातें की थी ऑलमोस्ट वही आपने यहाँ पे उठा के रिपीट कर देनी है। तो दिस इज ऑल एज फार एज योर एसओपी इज कंसर्न। अगर कोई सवाल है तो आप बता सकते। कैन यू प्लीज शेयर दिस एसओपी एज सैंपल? नहीं यार, ये मेरी अपनी एसओपी है, तुम जिसकी आगे भी जरूरत हो सकती है तो आई कैन शेयर इट येट। मैंने आपको पहला भी दिखा दिया पैराग्राफ, वो भी चलो खैर है। अली, आर यू हियर? यस प्लीज। किसी का सवाल नहीं है अभी? आई थिंक नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से एसओपी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। यस यस कंटिन्यू। ओके, सो अब आती है कैटेगरी ऑफ रिकमेंडेशंस की बात। सो बेसिकली इनका जो गोल या इनका जो पर्पस है वो ये होता है कि जो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा हुआ है वो सब ठीक है, क्योंकि एक इंसान अपनी एसओपी में कोई भी झूठ बोले, मैंने यहाँ भी काम किया हुआ है, मैंने ये सर्च भी की है, मैंने वो सर्च भी की, वो उन लेटर्स में उस चीज को वेरीफाई कर रहे हो तो वो आपकी बातों पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा होगा। तो अगर आपकी एसओपी अच्छी है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो भी बहुत अच्छे हों। अब एक अच्छा लेटर लेने के लिए आपको 6 महीने से 1 साल पहले तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। इसकी रीजन ये है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो हमारे प्रोफेसर हैं वो जानते ही नहीं है कि अच्छा लेटर लिखते कैसे हैं, और उसकी एक रीजन है, इसमें उनका अपना इतना जो है वो कसूर नहीं है। रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जब यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स
का एडमिशन होता है तो उसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए जब स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है तो जो हमारे प्रोफेसर हैं वो उन्होंने आज तक किसी लेटर को एवेल्युएट नहीं किया, और अगर उन्होंने खुद लेटर्स को एवेल्युएट नहीं किया तो वो ये बात नहीं जानते कि लेटर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को भी अक्सर ये बात नहीं मालूम होती कि लेटर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में जो बेस्ट स्टेटमेंट है आपके बारे में वो ये है कि इस स्टूडेंट का मेरे कोर्स में जो ग्रेड है वो था A+, तो वो लेटर जो है ना वो ना होने के बराबर ही है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो गार्बेज है। ठीक है। इस तरह ही अगर आपके लेटर में आपका जो रिकमेंडर है वो हवा में जो है ना वो चला रहा तीर के ये जो स्टूडेंट है ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ये बहुत ही जीनियस है, ये बहुत ही डेडिकेटेड है, उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि आपका जो प्रोफेसर है वो आपको किस स्केल के ऊपर जो है वो देख के आपको जीनियस कह रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो हों ही इतने सारे के उसमें वो समझ रहा हो कि आप जीनियस हैं। तो जब भी लेटर में आपका जो भी आपका रिकमेंडर है उसने आपकी तारीफ करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जो है वो आपकी हर तारीफ करने से पहले जो उसके पीछे स्टोरी है या जो उसके पीछे इंस्टेंस है वो उसको बताए। मतलब कि अगर वो कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ये बहुत हार्ड वर्किंग है तो वो उसके पीछे जो भी स्टोरी है जिसकी वजह से वो कह रहा है वो उसको बताए कि एक बार हम लोग ये जो प्रोजेक्ट है वो कर रहे थे और उसमें जो स्टूडेंट है उसका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आ रहा था, लेकिन स्टिल वो उसके ऊपर करता रहा मेहनत और एंड में उसका रिजल्ट ठीक आ गया। लाइक ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपने जो है वो हवा में तीर नहीं चलाने, आपने हर जो आप स्टूडेंट की तारीफ कर रहे हैं उसके पीछे जो स्टोरी है वो आपने बतानी है। ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको ये बातें मालूम नहीं होती क्योंकि उन्होंने खुद भी जो है ना एज सच जो है वो लेटर्स को वैल्यूएट नहीं किया होता। सो एक बात तो ये है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आपने जो लेटर है वो लेना किससे है, तो हमेशा जो है ना आपने एक PhD प्रोफेसर से लेटर लेना है। कोशिश करें कि जो MS के लेक्चर्स हैं उनसे आप लेटर ना लें, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जिस बंदे ने खुद PhD की होगी वो ही आगे एक स्टूडेंट को रेकमेंड कर पा रहा होगा कि इसमें भी वो क्वालिटीज हैं जो कि PhD के दौरान रिक्वायर्ड होती हैं। जिस इंसान ने इस टाइम पे सिर्फ MSc की हुई है और उसकी भी PhD कंप्लीट नहीं हुई और वो लेक्चर है, तो उसको इतना अच्छा आइडिया शायद ना हो कि PhD के लिए क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती हैं। इसलिए आपने जब भी किसी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेनी है तो कोशिश करें कि वो PhD डॉक्टर हो। उसके बाद कोशिश करें कि उसकी जो PhD है वो US से हो या फिर किसी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि जौन से प्रोफेसर ने US से PhD की होगी वो ज्यादा बेहतर ये बता पाएगा कि इस स्टूडेंट में उस टाइप की हैवी रिसर्च करने की जो क्वालिटीज हैं वो हैं कि नहीं है। सो ये हो गया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के हवाले से। और उसके बाद जो है वो एटलीस्ट तो US में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको 3 लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो 3 में से एटलीस्ट एक जो लेटर है ना वो आपके रिसर्च सुपरवाइजर का होना चाहिए कि आपने अपनी SOP में जो भी बताया है कि मैंने ये रिसर्च की हुई है, तो आपका जो रिसर्च सुपरवाइजर है वो अपने लेटर में आपकी जो बातें हैं उनको वेरीफाई कर रहा हो कि इसने वाकई में रिसर्च किया। तो अगर आप अपनी जो SOP है उसमें लिखते हैं कि मैंने ये भी रिसर्च की हुई है और ये वो, और बाद में आपके एक भी रिकमेंडर ऐसा नहीं है जिसने आपको सुपरवाइज किया हो उस
रिसर्च में तो आपकी जो एसओपी वाली बातें हैं उन पे कोई यकीन नहीं करेगा। सो आप अभी से ही जो है वो प्रोफेसर्स के साथ साथ काम करना स्टार्ट हो जाएं और उनके साथ इंटीमेट हो जाएं, ताकि कल को जब आप उनसे लेटर मांगें तो एटलीस्ट वो आपको इतना जानते हो कि वो आपके बारे में कोई स्टोरी या इंस्टेंस लिख सकते हो कि मैंने इसके साथ ये काम किया हुआ है और ऐसे ऐसे। तो ये बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, सो एक सवाल एसओपी से रिलेटेड है कि हमें प्रोफेसर का नाम मेंशन करना चाहिए कि नहीं। तो हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी एसओपी में एक जो पैराग्राफ है वो सिर्फ यही होगा कि मैं कौन से फैकल्टी मेंबर के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो उसमें आप ऑब्वियसली उसी का नाम लिखेंगे जिसने आपकी जो ईमेल है उसका रिप्लाई किया होगा। सो आपने उसी का नाम बताना है। लेटर ऑफ recommendation should be followed। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली जो है वो एक ही टेम्पलेट उसकी होगी जो आपका जो प्रोफेसर है वो सारी यूनिवर्सिटीज में उसको भेज देगा। आई डोंट थिंक उसके लिए डिफरेंट होना चाहिए। वलीद, देयर इज अ क्वेश्चन के अगर आप फॉर एग्जांपल आपने खुद बताया कि आप ब्यूटी के हैं लेकिन आप लम्ब में रिसर्च कर रहे हैं, तो व्हाट्स द अप्रोच कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट में रिसर्च करना चाह रहे हैं तो कैसे प्रोफेसर को अप्रोच करना चाहिए दूसरी यूनिवर्सिटी? आप लोग लम्स की जो मतलब के लम्स भी है उसके अलावा ITU भी है जो जहाँ पे जो फैकल्टी है वो एक्टिवली रिसर्च कर रही है। तो आप वहाँ पे जो उनके प्रोफेसर हैं उनकी जो उनका पेज है उसके ऊपर आप जाएं, वहाँ पे आप देखें कि वो कि आपके के जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कौन कौन से जो प्रोफेसर हैं वो काम कर रहे हैं। फिर जैसे आप US के जो प्रोफेसर हैं उनको आपने भेजनी ईमेल, इस तरह ही आप इनको भेज दें ईमेल कि मेरा भी यही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मैं आपके साथ रिसर्च करने में जो है वो इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसे आप उनको भी जो है वो ईमेल करके आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर प्रोफेसर आपको पर्सनली नहीं जानता तो उसको आपको पर्सनली जानने की जरूरत नहीं है। उसने बस आपके साथ थोड़ा बहुत जो है वो काम शाम किया हो कि एटलीस्ट ये ना हो कि आप उसके पास जाएं और उसको आपका जो नाम है वो भी ना मालूम हो। सो एज अ सेट कि आप जौन सी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको एटलीस्ट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपके 3 हों लेटर्स। तो उनमें से अगर आपके 3 में से एक स्ट्रॉन्ग इतना नहीं भी है तो खैर है, लेकिन जो बाकी 2 हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, या फिर एटलीस्ट जो आपका एक लेटर जो आपके रिसर्च वाले सुपरवाइजर ने भेजना है वो स्ट्रॉन्ग वो एटलीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बाकी जो 2 हैं वो आपको अगर इतना अच्छा ना भी जानते हो तो कभी कभार जो है ना वो कॉम्पनसेट हो जाता है, लेकिन 3 में से एटलीस्ट एक हो जो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर लिख सकता हो। कोई सवाल नहीं है। मेरे ख्याल से दैट्स ऑल, वी शुड मूव टू द नेक्स्ट सेशन। सो अब हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो पहले हम आते हैं GRE के ऊपर। तो इसमें बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। इसमें ऐसे होता है, वर्बल होता है, कॉन्ट होता है। जो ऐसे होता है वो आपके ओवरऑल स्कोर में ऐड नहीं होता, उसका स्कोर होता है अलग से, तो वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आप इंजीनियरिंग में जो है वो कर रहे हैं अप्लाई, तो जो आपका इंग्लिश का स्कोर है वो भी इतना नहीं मैटर करता। मतलब इंग्लिश में अगर आपका 170 में से 155 के भी अराउंड हो तो इट्स एक्सेप्टेबल।
लेकिन जो आपका कॉन्ट का स्कोर है वो मैटर करता है, जो आपका मैथ का स्कोर है उसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके 170 में से 170 ही हो। 167 तक हम लोग कहते हैं कि ये स्कोर आपका जो है वो ठीक है। अगर आपका 167 से भी कम है तो थोड़ी बहुत जो है ना वो आपको इशू हो सकता है, लेकिन जो मैथ का पोर्शन है वो उतना मुश्किल होता नहीं है, सो आप 170 लिए जा सकते हैं। अब आता है कि इसकी जो तैयारी है वो कैसे करनी है। तो बेसिकली आपने अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो आपने लगाना है मैथ के ऊपर, कौन पे लगाना है। इसके लिए आपको मेरे ख्याल में तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई एकेडमी या फिर कोई कोर्स जो ऑनलाइन मौजूद है, मैंने जो यूज़ किया था और मेरे जानने वाले भी जितने भी हैं जो जिन्होंने जीआरई में अच्छा स्कोर लिया है उन्होंने ये जो बुक है मैनहट्टन जीआरई की ये उन्होंने इस्तेमाल की थी। इसमें जो है वो मैथ की हर टॉपिक की जो है वो एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, तो वो अगर आप कर लें तो आपका कॉन्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाता है। इस तरह ही है अगर आपने इंग्लिश में जो इंग्लिश है उसमें आपको जो अपनी वोकैब है वो आपको इसमें एक बात तो ये है कि जो आपकी वोकैब है वो आप इतने थोड़े टाइम में इम्प्रूव कर भी नहीं सकते। सो जो इसका शॉर्टकट है वो यही है कि आपको गूगल से या फिर ऑनलाइन जो है वो आपको जीआरई में जो कॉमन मुश्किल वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं उसकी जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 200 के करीब वर्ड हैं, तो वो आप याद कर लें तो आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो भी इजीली जो है वो तैयार हो जाता है। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है तो फिर जो है वो आप जो इंग्लिश की एक्सरसाइजेज हैं वो भी इस वाली बुक में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उसकी भी काफ़ी जो है वो कर सकते हैं प्रैक्टिस। और उसके अलावा ऐसे का इतना रोल नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर आपकी राइटिंग वीक है तो आप ऐसे पे भी ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, वरना 2-3 दिन लगाना है इतना। उसके बाद टोफल पे आते हैं। टोफल में बेसिकली वो आपकी इंग्लिश को जो है वो वैल्यूएट कैरी होते हैं। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। और चारों के जो हैं वो 30 मार्क्स होते हैं ईच, और इसमें सिर्फ एक थ्रेशोल्ड होता है जो आपने पास करना होता है। इसमें आपके थ्रेशोल्ड के बाद आपके कितने मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करता है। तो बेसिकली आपके अगर मतलब कि ये 120 मार्क्स का जो है वो आपका टेस्ट होता है, तो उसमें आपके 105 से ऊपर आ जाएंगे या फिर 102 से ऊपर आ जाए तो ठीक होते हैं वो मार्क्स। इसकी अगर आपने करनी है प्रिपरेशन तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ्री स्टफ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है वो स्पीकिंग का होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए यूट्यूब का चैनल भी है एक, नोटफुल टोफल मास्टरी, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। वहाँ से आप टोफल की काफ़ी अच्छी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। So this is all as far as standardized testing is concerned, और ये आपकी समरी है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है रिक्वायरमेंट्स, ये मैंने इन द ऑर्डर ऑफ कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है उस हिसाब से लिखी हुई हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट की हैं जहाँ पे आपने करना अप्लाई। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो कितना है, फिर आपकी एसओपी, फिर आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और फिर बिल्कुल एंड में जो है वो आपका जीपीए और जो आपके स्कोर हैं जीआरई और टोफल में वो आते हैं। किसी का काफी सवाल है तो बता सकते हैं। व्हाट इज इजियर, आइल्स और टोफल? दोनों सेम ही होते हैं, इतना इनमें फर्क नहीं होता। अगर आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी है तो फिर दोनों में आप आराम से जो है वो मार्क्स ले सकते हैं।
जो आइल्स है जो जो आइल्स है उसकी भी जो प्रिपरेशन है वो आप इसी मटेरियल से आपकी हो सकती है, लेकिन स्टिल अगर आपको स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन जो है वो टेस्ट्स हैं। तो इनके लिए जो है वो आपको हेल्पिंग मटेरियल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, वो आपको आराम से मिल सकता है। सोशल वर्क एक्सपीरियंस मेक एनी डिफरेंट परमिशन। सोशल वर्क का नहीं इतना होता रोल, उनको सिर्फ वो जो लोग आपकी एप्लीकेशन को बैठ के देख रहे होते हैं, वैल्यूएट कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उनको सिर्फ इस चीज़ का प्रूफ रिक्वायर्ड होता है कि आप अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। आपने सोशल वर्क किया हुआ है नहीं किया हुआ वो उनके लिए सेकेंडरी बात है, तो उस चीज़ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो वैल्यूएट नहीं होगी। अगर आप द odds ऑफ गेटिंग फंडिंग फॉर ओनली MS बहुत लो हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है। Okay, so low CGPA, GRE 163 con, 2 international publications। अगर तो आपके पास 2 इंटरनेशनल पब्लिकेशन हैं तो आपका जो GPA है वो तो ऑलरेडी कॉम्पनसेट हो जाएगा। आपने करना बस ये है कि आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज और जो आपकी फैकल्टी है उसको आप शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दें, उनको ईमेल भेजना स्टार्ट कर दें, और उसमें जो है जो आपका GRE का स्कोर है वो थोड़ा सा कम है कॉन्ट में, उसको आप इम्प्रूव कर लें तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी क्योंकि आपके पास 2 इंटरनेशनल पब्लिकेशन है और जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो अच्छे वेन्यूज में है तो आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे। और कोई सवाल है किसी का? ओके, अभी थोड़ा सा अब जो है ना वो आखिरी चीज जाएगी इसमें, तो वो करके फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सो अब जो इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है ये बहुत ही महंगा है और ये सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। GRE की जो फीस है वो आपकी $200 है, टोफल की भी इतनी है, और हर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी जो आपकी एप्लीकेशन फी होती है वो सेम तो नहीं होती, लेकिन वो 70 से 100 के बीच में होती है। जो आपकी यूनिवर्सिटीज कैलिफोर्निया में है उनकी थोड़ी सी ज़्यादा फीस होती है, लेकिन बाकी जो है वो आपकी एप्लीकेशन फी जो है वो 70 से 100 के बीच में होती है। सो अगर आप देखें तो सारी इसकी जो कॉस्ट है वो मिला के आपको ऑलमोस्ट 6 से 7 यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको $1000 की जरूरत है, और मतलब कि ये लाइक आपके 1.5 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप एडमिट हो जाते हैं PhD में तो आपके तो जो आपकी पहली महीने की सैलरी होगी उसी में जो है वो जितना भी आपका खर्चा हुआ होगा वो सारा आपका रिकवर हो जाएगा। सो अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप PhD में जो है वो आप जाएं और आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो जो पैसा है उसको आप अपने लिए बैरियर ना बने और आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, और ऐसे आपकी जो भी आपका खर्चा होगा वो आपका बाद में आराम से रिकवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका प्लान है, अगर आपने इसी साल जो है वो करना है अप्लाई तो आज से अगर हम देखें तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 महीने हैं, तो आप आज से ही जो है वो फैकल्टी और जो यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपने अप्लाई करना है उनको आप शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दें, और आप जो प्रोफेसर हैं उनको ईमेल भेजना स्टार्ट कर दें और अपना जो GRE है उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। फिर
अगर आपको प्रोफेसर से अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर आपको इसी साल अप्लाई करना चाहिए, और उसके लिए आपको फिर मिड अक्टूबर तक जो है अपना GRE दे देना चाहिए, और मिड नवंबर तक आपको अपना जो टोफल है वो भी दे देना चाहिए। और फिर जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी ऑनलाइन सबमिट होती है, तो वो आपको नवंबर में उनको फिल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जॉन जॉन से रिकमेंडर से आपने लेटर मांगने हैं, उनको आप एटलीस्ट 5 से 6 हफ्ते पहले बता दें डेडलाइन के, ताकि उनके पास भी टाइम हो, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आपकी जो डेडलाइन होती है वो बहुत करीब होती है, और जो आपके रिकमेंडर होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता आपके लिए लेटर लिखने का। उसके बाद जो आपकी SOP है वो इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए उसको अच्छा लिखने के लिए। तो उसके लिए आप एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते पहले अपनी जो SOP है उसको लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे केस में मैंने अपनी SOP के ऑलमोस्ट जो है ना वो मैंने 11 बार जो है ना उसका जो ड्राफ्ट है उसको मैंने अपडेट किया था, तो फिर मैं अपने फाइनल जो SOP है उस पर मैं आया था। तो इसका में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीना जो है वो मेरा लगा था। तो अगर आपने एक अच्छी SOP लिखनी है तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, तो आप ऑलमोस्ट 6 से 8 हफ्ते पहले डेडलाइन से अपनी SOP स्टार्ट कर दें, और 15 दिसंबर जो है वो मोस्टली डेडलाइन होती है सारी यूनिवर्सिटीज़ की, तो उस वक्त तक जो है आपकी हर चीज़ तैयार होनी चाहिए। और इसमें जो आपने बात दिन में रखनी है वो ये है कि टोफल और GRE आपने जौन सी भी डेट को देना है उससे आपको एटलीस्ट 3-4 हफ्ते पहले उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है, वरना जो है वो डेट्स निकल जाती हैं। जो टोफल और GRE है वो आपके जो टोफल है वो आपका हर वीकेंड पे होता है, और जो GRE है वो आपके थ्रू आउट द वीकडेज होता है, मंडे से थर्सडे तक। आजकल तो वैसे सेंटर्स ही बंद हैं, लेकिन जब ये ओपन होंगे तो आप कोई भी डेट अपनी मर्जी की ले सकते हैं। सो दैट्स इट। आप किसी का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। Do you get paid in the first 2 years when you apply for PhD if you are doing master's first? हाँ जी, जब आपका PhD में एडमिशन होता है तो आपको स्टार्ट से ही जो है वो आपकी फीस भी माफ होती है और आपको सैलरी भी मिलती है। तो स्टार्ट से ही जो है वो आपकी हर चीज फ्री होती है, इवन जब आप मास्टर्स जब आप मास्टर में भी होते हैं। व्हाट अबाउट एकोमोडेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस? जो आपको स्कॉलरशिप जो आपको सैलरी मिल रही होती है वो आपके लिए मोर देन होती है कि आप उसमें आराम से जो है वो खुल्लम खुल्ला रह सकते हैं। उसमें आप अपना जो है वो घर भी ले सकते हैं, खा भी सकते हैं, और हर चीज, और उसके बाद भी आपकी सेविंग होती है, तो आप काफी अच्छा रह सकते हैं। उसके बाद GRE फी करेंसी स्पेसिफिक नहीं होती, ये $US के हिसाब से जो है इसकी फीस होती है, तो वो अब आपके मुल्क में जो भी उसका रेट है आजकल वो उसके हिसाब से होता है। कैन प्रोफेसर प्रोवाइड एनी स्कॉलरशिप? जो आपकी फंडिंग होती है वो आपका जो प्रोफेसर है वो ही आपको कर रहा होता है प्रोवाइड, लेकिन एक जो प्रोफेसर होता है ना वो चाह रहा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करे ताकि उसका जो नाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर हो, और अगर वो बहुत जूनियर है तो उसकी जो रिसर्च प्रोफाइल है वो बेहतर हो। तो जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो सिर्फ 2 साल की होती है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अच्छी रिसर्च कर पाए। तो इसलिए जो प्रोफेसर उनकी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि वो जो अपनी फंडिंग है वो PhDs को ही दें, वो मास्टर्स वालों को ना दें। Are we done with the questions? नहीं, अभी आ रहे हैं, आई थिंक थोड़े से और ले लेते हैं।
Is it necessary to have 3 letter of recommendation from 3 PhD teachers? अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है, लाइक अगर आपने अपना जो FIP है वो भी किसी लेक्चरर के साथ ही किया हुआ है और अगर आपने उसी एरिया में आगे भी काम करना है तो फिर ठीक है, आपका जो 3 में से 1 है वो आपका वो PhD ना भी हो तो खैर है, लेकिन ये सिर्फ उसी केस में लें अगर आपकी बहुत ही जो है मजबूरी है, वरना आपकी जो कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि जो आपका रेकमेंडर है वो PhD हो, क्योंकि एज ए सेट के उन्होंने के जो आपकी कमेटी है जिसने आपकी एप्लीकेशन देखनी है, वो अगर एक लेक्चरर की रिकमेंडेशन देखते हैं तो वो कहेंगे कि इसने तो खुद ही PhD अभी नहीं की, तो ये कैसे इस बात का हिसाब लगा सकता है कि ये स्टूडेंट PhD में अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, क्या हिसाब किताब है। तो इसलिए अगर आपकी बहुत मजबूरी है तो फिर आप 3 में से 1 जो है वो किसी लेक्चर से ले लें, वरना यू शुड ऑलवेज टेक इट फ्रॉम अ PhD। हाँ जी, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू PhD प्रोग्राम आफ्टर BSc, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था। If one has done final year project in a certain domain and was not able to select FIP of choice due to CGPA, अगर तो आपका जो FIP है वो उस डोमेन में नहीं है जिसमें आपने आगे PhD में अप्लाई करना है, तो इट इज़ बेटर कि आप उस एरिया में अब काम करके पहले अपना जो एक्सपीरियंस है वो लें और फिर ही आप आगे जो है PhD में जो अपनी एप्लीकेशन है वो भेजें, क्योंकि अगर आपका उस एरिया में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो फिर तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसका वैसे कोई फायदा नहीं। आई थिंक दिस इज इट। और कोई सवाल नहीं है किसी का? Okay, so now that we are done with the queries and question answer session, Mr. Ahmed, do you want to take this question? I guess somebody is asking. एक second. No, they don't ask you if you want a fellowship, TAship or RAship. They usually ask you कि आपको फंडिंग रिक्वायर्ड है या फिर आपके पास किसी और सोर्स से फंडिंग है अवेलेबल, तो वहाँ पे आप उनको बताते हैं कि मुझे फंडिंग रिक्वायर्ड है, तो वो उतना ही पूछते हैं आपसे। अच्छा, उसके बाद GRE की बुक रिपीट कर दें। मैनहट्टन GRE 5 पाउंड, या आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको इजीली जो इसकी PDF है वो आपको इजीली फ्री में मिल जाएगी। मैनहट्टन GRE इसका नाम है। How to approach you for future queries? You can approach me. I think जो Azeem है जो यहाँ पे इस मीटिंग को मॉडरेट कर रहे हैं, उनसे आप मेरा नंबर ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द फ्यूचर। So I think this is the end of this. नहीं, जो आप अच्छा वो पूछें कि जो आपका टिकट का फेयर है वो भी यूनिवर्सिटी ही देगी? नहीं, वो नहीं देंगे यूनिवर्सिटी वाले, वो आपका अपना, वो आपको सिर्फ जो है आपकी ट्यूशन फी है वो माफ होगी और वो आपको महीने की जो है वो सैलरी दे रहे होंगे, उसको आपने कैसे जो है वो इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। अच्छा, मेरी जो ईमेल है वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैंने प्राइवेट भेज दिया। तो ये मेरी ईमेल आईडीज हैं, इनमें से किसी पे भी आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है। Is the procedure same for other than US यूनिवर्सिटी? हाँ जी, प्रोसीजर सेम ही होता है हर केस में। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना तो प्लीज़ रैंडमली जो है वो अप्लाई ना किया करें। आपको हर केस में जो है वहाँ की फैकल्टी से पहले
जो है वो पूछना चाहिए कि वो स्टूडेंट ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें एक बात तो ये होती है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में ऐसी फैकल्टी ढूंढ भी लें जो आपके एरिया में काम कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर साल नए स्टूडेंट्स ले रहे हों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनके पास फंडिंग इस साल अवेलेबल है कि नहीं है। और ज्यादातर जो प्रोफेसर हैं वो अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं करते कि वो इस साल स्टूडेंट्स ले रहे हैं कि नहीं। तो ये ना हो कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें आप उस वाले फैकल्टी मेंबर का नाम लिख दें कि मैं इनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, और बाद में जी आपको मालूम हो कि वो वाला जो फैकल्टी में मेंबर है वो तो इस साल कोई स्टूडेंट ले ही नहीं रहा। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप पहले उनको ईमेल भेज दें, और बाकी जो प्रोसीजर है वो भी सेम है। Is the funding provided for PhD enough to keep your family in the US? डिपेंड करता है कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है। लाइक अगर आपका कैलिफोर्निया में हुआ है या फिर अगर आपका मैसेच्यूसेट्स में हुआ है तो वो स्टेट्स बहुत महंगी हैं। तो वहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है उसमें आपका फैमिली को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल रहता है। उसमें आप खुद ही रह सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ एक इंसान और हो वो रह सकता है। लेकिन अगर आपका किसी सस्ती स्टेट में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, जैसे कि जो मेरा इंस्टीट्यूट है UIUC, वो है इलिनॉय में। तो जहाँ पे वो वाली यूनिवर्सिटी है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जो प्लेस है, तो वहाँ पे आप फैमिली को भी आई थिंक रख सकते हैं साथ। I think that's it. Okay, thank you so much, Mr. Vahid, for your time. It was an honor having you with us. And I hope this session was informative enough for everybody else as well. I hope this was able to solve most of your queries. And still, if you have questions, you can contact Mr. Ahmed personally on the provided email that he had given you guys. So I'll end the session on the note that the ultimate goal of this webinar was to pave a way towards a culture where seniors can endorse and secure admissions in top universities of the US even before they graduate. I hope you were able to fulfill this purpose. So may the odds be ever in your favor. This is your host, Amna Tessin, signing off. Thank you so much for your time. You can leave the meeting now, I think. I will end the meeting.